اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد آیت مبارکہ کی تفسیر۔ واو اور لئن، اگر، اتیتا، آپ لے آئیں، الذین، جنہیں، اوت الکتاب، کتاب دی گئی، یعنی اس سے مراد اہل کتاب ہیں، بکلی، تمام، آیتن، آیت یعنی نشانیاں، ما تابعو، وہ پیروی نہ کریں گے، قبلتک، آپ کا قبلہ، وما، اور نہ، انتا، آپ، بتابعن، پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کا قبلہ، وما، اور نہیں، بعدہم، ان میں سے کوئی، بتابعن، پیروی کرنے والا، قبلتا، قبلہ، بعدن، کسی، والا ان، اور اگر، اتبعتا، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءک، کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، انک، بے شک آپ، اذن، اب، لامنا، سے، الظالمین، بے انصاف۔ اب با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے سامنے جنہیں کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانیاں، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی لے کر آ جائیں، ما تابعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، تو بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت مبارکہ کے اندر بہت حساس پہلو، اہم پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو عملی شکل میں قبلہ قرار دے دیا تو اس پر اہل یہود نے اعتراضات کی بچھاڑ کر دی اور انہوں نے طرح طرح کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کے قلب مبارکہ پر ان اعتراضات نے گہرا اثر کیا کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، تو بجائے اس کے کہ یہ ہدایت کو تسلیم کر لیں، تو یہ ہدایت کو تسلیم کرنے کی بجائے ہدایت کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، نہ خود ہدایت کے رستے پر آ رہے ہیں اور دوسروں کو ہدایت کے رستے سے روک بھی رہے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک انتہائی پریشان کن مرحلہ تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب کے سامنے دنیا بھر کی بھی نشانیاں لے کر آ جائیں، دنیا بھر کے بھی معجزات لے کر آ جائیں، تو یہ آپ کے قبلہ کی پیروی پھر بھی نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ کا قبلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، آپ کی امت کا قبلہ ہے،
उस किबले की पैरवी ये फिर भी नहीं करेंगे, उसे अपना किबला फिर भी तस्लीम नहीं करेंगे। यानी आयत का जो मजमून है, इस पहले हिस्से का मजमून ये बता रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शायद ये ख्याल पैदा होता था कि अगर मैं इन्हें कोई मोजज़ा दिखा दूं तो हो सकता है इन्हें इत्मीनान आ जाए, ये मेरे दीन को कबूल कर लें, मेरे क़िबले को तस्लीम कर लें, मेरी नबुव्वत और रिसालत पर ईमान ले आएं। हो सकता है इन्हें मैं कोई मोजज़ा दिखाऊं तो ये मुतमईन हो जाएं और कीड़े निकालना छोड़ दें और रोड़े अटकाना छोड़ दें, लोगों के अंदर गुमराही फैलाने से बाज आ जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तमन्ना पर, इस ख्वाहिश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि मेरे हबीब मुकर्रम, अगर दुनिया भर की भी अलामात, दलाइल, निशानियां इन्हें दिखा दी जाएं तो ये फिर भी आपके किबला की पैरवी नहीं करेंगे, आपके किबला को तस्लीम नहीं करेंगे। अब दूसरा जोरदार जुमला देखिए इसी के साथ, वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी उनके किबला की पैरवी करने वाले नहीं हैं। यानी ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो एतराज़ात हैं, इन एतराज़ात को कोई ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको खातर में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपके किबला को तस्लीम नहीं कर रहे तो आप भी तो उनके किबला को तस्लीम नहीं कर सकते। यानी अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए एक और बात इरशाद फरमाई कि ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अहले किताब के इत्मीनान की सिर्फ एक सूरत है, और वो सूरत ये है ऐ मेरे हबीब कि आप उनके किबले की पैरवी करें। और ये तो नामुमकिन है कि आप उनके किबला की पैरवी करें, क्योंकि आपके लिए तो किबला खाना काबा करार दिया जा चुका है, पिछले किबले बैतुल मुक़द्दस को मनसूख किया जा चुका है और आपका नया किबला खाना काबा हो चुका है। तो अब आप उनके किबला की पैरवी करने से तो रहे, आप तो उनके किबला की पैरवी नहीं कर सकते। यानी दुनिया भर के अगर इनको मोजज़ात दिखा भी दिए जाएं तो ये मुतमईन नहीं हो सकते। हाँ, उनके मुतमईन होने की सिर्फ एक सूरत है जो कि नामुमकिन है, और वो सूरत क्या है कि आप उनके किबला की पैरवी शुरू कर दें। अगर आप उनके किबला की पैरवी शुरू कर देंगे तो वो फिर मुतमईन हो जाएंगे, और ये तो अब इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि आपका नया किबला खाना काबा करार दिया जा चुका है। अब आगे देखें, अल्लाह पाक ने एक तीसरा पहलू इसी बात का बयान फरमाया, बहुत दिलचस्प है वो भी, वमा बादुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद, और उन्हें मुतमईन कैसे किया जा सकता है, उनकी तसल्ली भला कैसे हो सकती है। ये जो अहले किताब हैं, एक तरफ यहूद हैं और एक तरफ नसारा हैं, इन दोनों का किबला तो एक ही है, बैतुल मुक़द्दस। तो ये तो एक किबला होने के बावजूद उस पर मुत्तहिद नहीं है, उस पर भी ये यकजान नहीं है, उस पर भी ये दो धड़ों के अंदर मुनक़सिम हैं। नसारा अगर बैतुल मुक़द्दस के अंदर होते हैं तो वो मशरकी जानिब को अपना किबला मानते हैं, और यहूद बैतुल मुक़द्दस के अंदर होने की सूरत में मगरबी जानिब को अपना किबला मानते हैं। यानी बैतुल मुक़द्दस के किबला होने पर भी इन दोनों का आपस में इख्तलाफ है। बैतुल मुक़द्दस के अंदर हों तो बैतुल मुक़द्दस की मशरकी और मगरबी जानिब को किबला मानते हैं, और अगर बैतुल मुक़द्दस से बाहर हों, किसी दूसरे और मकाम पर हों, यहूद मगरब को किबला मानते हैं और नसारा मशरिक को अपना किबला मानते हैं। तो इन दोनों का किबला तो एक ही है। ये अपनी शरीयत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को किबला मानते हैं, मगर किबला मानने के बावजूद उस किबले के अंदर ये इख्तलाफात का शिकार हैं। तो ये खाना काबा पर कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं, खाना काबा पर कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं। बैतुल मुक़द्दस तो एक किबला है, उस पर भी ये दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं हैं। तो ये वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलत बाद, एक दूसरे के किबला की पैरवी करने के लिए वो मुत्तफिक नहीं है। एक कहता है कि मशरिक किबला है और एक कहता है कि मगरिब किबला है। तो इसीलिए तो पीछे वो आयत गुजरी, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, कि मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, तुम जिधर रुख कर लोगे तुम उधर ही अल्लाह को पालोगे।
تو اللہ रब्बुल आलमीन ने ये 3 जुमलों के अंदर इस आयत मुबारका के अंदर 145 आयत के अंदर अल्लाह पाक ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। और ये मज़मून को समझाने के अंदर अल्लाह पाक ने इंतहा फरमा दी है। यानी आप देखें कि इस बात के एक एक पहलू को इंतहाई बारीकी के अंदर जाकर अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। और आगे आखिरी जो बात इरशाद फरमाई उसके अंदर ज़ाहिर में खिताब अगरचे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन इससे मुराद तमाम इंसानियत है। इससे उम्मत मुहम्मदिया भी मुराद हो सकती है, यहूद और नसारा भी मुराद हो सकते हैं। वाला इनित्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मी इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन। और अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दें बाद इसके कि आपके पास अल इल्म आ चुका है। अल इल्म से मुराद क्या है? हकीकी इल्म। अल इल्म से मुराद क्या है? वही इलाही। अल इल्म से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वाज़े हिदायत। अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दें, यानी आप देखें कि 2 चीज़ें हैं, 2 मुकाबले के अंदर हैं दोनों चीज़ें। एक है अल इल्म और एक है हवाए नफ्स, ख्वाहिशात नफ्स। तो अगर आप उनकी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी शुरू कर दें जबकि आपके पास तो इल्म आ चुका है, अल इल्म के आ जाने के बाद, वही इलाही के आ जाने के बाद अगर आप फिर भी उनकी ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर देंगे, उनकी ख्वाहिश क्या है कि बैतुल मुक़द्दस को किबला माना जाए, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक इस सूरत में फिर आपका शुमार ज़ालिमीन में से होगा, आप नाफरमानों की फहरिस्त में आ जाएंगे। अब इससे मुराद कौन है? इससे मुराद यहूद भी हो सकते हैं, इससे मुराद ईसाई भी हो सकते हैं, इससे मुराद उम्मत मुहम्मदिया भी हो सकती है, इससे मुराद जमी इंसानियत भी हो सकती है कि हमने किसी की भी ख्वाहिश की पैरवी नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पैरवी करनी है, कुरान की पैरवी करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी है, इसके सिवा हमने किसी और की पैरवी नहीं करनी। अब हम देखते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 146 को। अल्लज़ीना जिन्हें आतैनाहुम हमने उन्हें दी अल किताबा किताब, यारिफूनहू वो उसे पहचानते हैं, कमा जैसे यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को, व इन्ना और बेशक फरीक़म एक ग्रोह मिनहुम उनमें से लयक्तुमूना वो छुपाते हैं अल हक़्क़ा हक़, व हुम यालमून हालांकि वो जानते हैं। आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसको पहचानते हैं। अच्छा, ये भी एक फ़र्क है कि अल्लाह पाक ने इससे पिछली आयत में 144 आयत के अंदर अल्लज़ीना ऊतुल किताबा फरमाया है। ऊतू का माना है दी गई, आतैना का माना है हमने दी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक यहाँ किसी एक ख़ास तबके का जिक्र कर रहा है। अहले किताब में से भी फिर एक ख़ास तबका है, यहाँ उस तबके का जिक्र हो रहा है। वो बिल्कुल महदूद सा तबका है, थोड़ा सा तबका है। ज़्यादा तबका वो है अहले किताब में से कि जो अहकाम इलाहिया को पसे पुष्ट डाल चुके हैं, वो अल्लाह की किताब को पहचानते ही नहीं हैं, अल्लाह की किताब की उन्हें कदर व मंजिलत का पता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमने किताब दी, वो ख़ास लोग हैं, थोड़े से लोग हैं। वो लोग ऐसे हैं कि वो किताब की कदर व मंजिलत को जानते हैं, किताब की अहमियत उन पर आश्कार है, तो वो यारिफूनहू वो इसे पहचानते हैं। अब इसे से मुराद कौन है? ये जो है यारिफूनहू, यारिफूना वो पहचानते हैं, हु इसे, उस से मुराद कौन है? तो इसके बारे में 2 आरा हैं। एक राय ये है कि इससे मुराद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, यानी वो हुजूर को पहचानते हैं। दूसरा इस हु से मुराद है क़िबला, चूँकि बात क़िबला की हो रही है, खाना काबा की हो रही है, तो वो खाना काबा को बतौर क़िबला जानते हैं। दोनों मानी, दोनों मुरादें बिल्कुल दुरुस्त हैं। हु ज़मीर का मर्जा दोनों हो सकते हैं, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं और क़िबला भी हो सकता है, यानी वो खाना काबा को भी पहचानते हैं, वो हुजूर को भी पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमाया, कमा यारिफून अबनाअहुम,
وہ इस तरह जानते हैं, हुजूर को भी जानते हैं, वो खाना काबा को भी पहचानते हैं, क़िबला को भी पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं जैसे लोग अपने सगे बेटों को पहचानते हैं। यानी उन पर ज़र्रा बराबर भी ये अमर मख्फी नहीं है, ये हकीकत मख्फी नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, क्योंकि तौरात के अंदर जगह जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हुजूर के महासिन, हुजूर के कमालात, हुजूर की अलामात, आखिरी नबी की तमाम अलामात बयान कर दी गई हैं। तौरात के औराक हुजूर की नातों से भरे पड़े हैं, मामूर हैं हुजूर की नातों से तौरात के औराक, मगर वो इसके बावजूद अगर इनकार करते हैं तो वो हक को जानते हुए हक को छुपाते हैं। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्ना फरीक़म मिनहुम, इनमें से एक गिरोह ऐसा है, ला यक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून, हालांकि वो हक को जानते हैं मगर इसके बावजूद हक का इनकार करते हैं। कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं, थोड़े से लोग कि वो हक को जानते हैं, हक को पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। जिस बेटे को अपनी गोद में पाला हो, जिसका बचपन उसके बाप के सामने गुजरा हो, लड़कपन उस बाप के सामने गुजरा हो, जवानी उसके सामने गुजरी हो, तो वो भला अपने बेटे को पहचानने से कैसे इनकार कर सकता है। तो ये अगर आज इनकार कर रहे हैं तो इनकार की सिर्फ एक ही वजह है कि वो हक को छुपाना चाहते हैं, हक लोगों के सामने आश्कार नहीं करना चाहते। पहचानते हैं, जानते हैं कि हुजूर कौन है, और ये भी जानते हैं कि ये जो आखिरी नबी हैं, इस आखिरी नबी का जो क़िबला होगा वो खाना काबा होगा। इनसे कोई अमर, कोई बात, कोई मामला ढका छुपा नहीं है, कोई बात इनसे मख्फी नहीं है, कोई हकीकत इनसे ओझल नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये जानते हुए कर रहे हैं। लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, मैंने कल की क्लास के अंदर भी इस्तेमाल किया, तजाहुल आरिफाना, जानते हुए अनजान बन जाना। यानी अल्लाह ताला ये भी अपने पैगंबर को तसल्ली दे रहा है कि हबीब वो नहीं मुतमईन होंगे। क्यों नहीं मुतमईन होंगे? क्योंकि वो जानते हैं ना, जानते हैं, तो जानने के बावजूद अनजान बने हुए हैं। वो हक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने हक वाजे नहीं करना चाहते। जैसा कि एक सादा सी मिसाल आप समझ लें, अगर कोई आदमी सो रहा हो तो सोए हुए को जगाना तो आसान है, उसे जगाया जा सकता है, उसे जगाना मुमकिन है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर सोने का ड्रामा रचा रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, सोने की एक्टिंग कर रहा हो, हकीकत में सोया हुआ ना हो, जाग रहा हो, खाबीदा हो, मगर आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ नींद का एक ड्रामा रचा रहा हो, तो उसको भी क्या जगाया जा सकता है? वो तो ऑलरेडी जाग रहा है। यानी सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, जागे हुए को तो जगाया नहीं जा सकता, वो तो ऑलरेडी जागा हुआ है, उसे भला कैसे जगाया जा सकता है? तो ये बात अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई कि वो हक को जानते हैं, हक को पहचानते हैं, हुजूर को जानते हैं, क़िबले को जानते हैं, खाना काबा को जानते हैं, उनसे कोई बात मख्फी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने जवाब दे दिया, ला यक्तुमूनल हक़, वो हक को छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 147 के अंदर अल्लाह पाक ने सारे मजमून को चंद लफ्ज़ों के अंदर समेट दिया, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही हक है जो आपके रब की जानिब से है। यानी खाना काबा ही किबला रहेगा, और खाना काबा का किबला होना ए हबीब, ए पैगंबर, आपके रब की जानिब से बिल्कुल हक है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, और तुम शक करने वालों में से ना हो जाना। यानी ये उम्मत मुहम्मदिया को पैगाम दिया गया, मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि वो जितने भी एतराज़ात और इल्ज़ामात के तीर चला दें, एतराज़ात की बुछाड़ कर दें, ए मुसलमानों तुम किसी शक में मुब्तला ना होना। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें राह रास्त से हटाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हक़ को पहचानने और हक़ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 145, 46 और 147 आज मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा दरस के अंदर, आइंदा क्लास के अंदर हम आयत नंबर 148 से अल्लाह पाक ने चाहा तो अपने सबक का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।